Okay, so now here dew point. First of all, we discuss about what dew point. In a winter season, we can means we easily find the dew anywhere in the farm or in a plantation, in a planted area. Okay, so now here dew means what? Whenever the temperature of atmosphere is below 40 degree, whenever the temperature of atmosphere is below 40 degree at a daytime, okay, means normally it happen in summer also, but whenever we think about only a 40 degree, it means what? Not above the 40 degree. Are you getting me? Means in a summer it may possible the temperature goes above the 40 degree. Okay, that's why in a summer we are unable to see the dew and the things which related to the humidity or dew. Okay, leave it. We are discuss about what? Dew point. Okay, so the dew point is what? When at the daytime, when the water vapors are continuously going into the upside of in our atmosphere. Okay, so the atmospheric air have the ability to absorb or hold 40 kg per 1 kg per meter cube square. Means in a air, suppose you assume here this is 1 meter cube area in a air. So inside of this area, the total weight of that air is up to what? Yes, 14 kg. 14 kg. That is maximum ability to hold the humidity or the vapor content. First of all, you must know, I am asking you a simple question, that is what? Air have some weight? Yes or no? The simple question is what? Air have its own weight? Yes or no? Can air have its own weight? हवेला स्वतःचं वजन असतं का? हवा को खुद का वजन होता है? हाँ या ना? यस, से लाउडली. अगर आपका आंसर ना है तो आप गलत हो. हवा को खुद का वजन है क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, गैसेस है, डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं एयर में, और उसी के साथ साथ हर जगह की एयर हॉट हो या कोल्ड हो, वहाँ पे ह्यूमिडिटी मैक्स अमाउंट में हो या लेस अमाउंट में, ह्यूमिडिटी है ही, मीन्स वाटर वेपर है ही. इन द सेंस व्हाट? एयर को खुद का वेट है. तो यहाँ पे इन द मैकेनिज्म ऑफ ड्यू पॉइंट, द एयर हैव एबिलिटी टू होल्ड 14 kg steam in a 1 meter cube area. In a 1 meter cube area. Okay, and this mechanism is above the earth surface. Okay, somewhere in the sky, below the troposphere. Okay, so whenever when a whole day the sun, due to the heat of sun, the water vapors are continuously going to the upside. Okay, and they are bounded in a particular area above the earth surface. Okay, but while the whole night is going on, then the temperature of atmosphere will be reduced. Okay, and the surface of the air, the temperature of surface of the air also reduce. Okay, if that cold air which is present in the surface of the earth, if moves that air in upward direction, if that air comes in contact with that water vapor, then that water vapor comes in a droplet. Means that conversion of that water vapors in a droplet, we called it condensation. We called it what? Condensation. Okay, so due to that cold air, this steam becomes drop, and that drop are float, or that drop which present over the leaves or a surface of the any wood surface or whatever, in our slab also we feel the dew point or the wetness due to the dew point. Are you getting me? होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी स्टीम दिन भर के टेम्परेचर की वजह से कलेक्ट हुई है,
वो स्टीम का ड्रॉपलेट कब तक नहीं होगा, जब तक उसे कोल्ड एयर नहीं लगेगी, बराबर। तो पूरी रात गुजरने से होता क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हवा का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन यह स्टीम ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। जब तक उस स्टीम का कांटेक्ट किसी कोल्ड एयर से नहीं होगा तब तक स्टीम का कन्वर्जन ड्रॉप में होगा क्या, नहीं। फिर ये बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, बहुत छोटे, इन द मीन्स इतने छोटे कि अगर 10-15 को मिला लो तब जाके एक बूंद गिरेंगी। फिर वो जैसे उनको वेट मिलेगा वो जमीन पे आएंगे, बराबर, जमीन की ओर दौड़ेंगे। और यहाँ पे जहाँ कहीं भी आपको पेड़ पौधे या ऐसा सरफेस दिखेगा जहाँ पे उनका रुकना पॉसिबल है, वहाँ पे वो आके ऐसे, जैसे अब एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर दूसरा ड्रॉप वहाँ पे आ गया, फिर तीसरा, ऐसे ड्रॉप आते आते वहाँ पे रुक जाएंगे। और जैसे ही ये ड्रॉप का बैलेंस करने का कैपेसिटी और हो जाएगा, वहाँ पे अगर माइक्रो ml भी आ जाता है तो फ्लोट हो जाएगा वहाँ से, बराबर। तो ये जो टेम्परेचर है और ये जो टेम्परेचर का रेशो है उसी को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। मीन्स उस टेम्परेचर को जहाँ पे वेपर का कन्वर्जन ड्रॉप में होगा, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी वेपर का कन्वर्जन ड्रॉप में होता है। ओके, नाउ हियर दिस इज व्हाट, ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिटी मीन्स व्हाट, द प्रेजेंस ऑफ वेपर्स, the presence of vapors, or we can say steam. Okay, the presence of steam in a air means हवा में पानी का कितना हिस्सा है, that is called humidity। फिर वो सिर्फ हवा में नहीं है, हमने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था कि मॉइस्चर, इसे और एक वर्ड है ह्यूमिडिटी को, यस मॉइस्चर ना, मॉइस्चर उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है। तो मॉइस्चर ये किसी कपड़े के अंदर भी हो सकता है या फिर किसी अनाज के अंदर भी हो सकता है। हम देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम जब हम कोई ऐसे फ्राई की हुई चीज़ें जो होती है घर में खाने की, फ्राई की हुई चीज़ें अगर हम विंटर में और रेनी सीजन में अगर उनको खुला छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, उनका जो क्रंचीनेस है वो ख़त्म हो जाता है, जो उनका क्रंचीनेस है वो ख़त्म हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ दे आर एब्जॉर्बिंग द ह्यूमिडिटी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। उन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है उस ह्यूमिडिटी को सक कर लिया, इस वजह से उनका क्रंचीनेस खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है कि ह्यूमिडिटी क्या है और ह्यूमिडिटी कैसे रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं समर में जैसे हम कूलर का यूज करते हैं, वाई वी आर यूजिंग कूलर इन समर, वाई? बिकॉज ऑफ वी आर मेंटेनिंग द ह्यूमिडिटी ऑल्सो। वहां पे ठंडी हवा आना मीन्स व्हाट, उस हवा में हम वाटर ड्रॉपलेट को छोड़ रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? उस हवा में हम वाटर ड्रॉपलेट को क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट को छोड़ रहे हैं। मीन्स उस हवा की जो ह्यूमिडिटी है उसको बढ़ा रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, इफ द ह्यूमिडिटी, इफ हम ऐसा बोल सकते हैं, इफ द ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज then temperature is what, sorry, temperature is what, decrease or increase? If the humidity will increase, then the temperature is what, decrease or increase? Okay, atmospheric temperature. Now tell me, temperature of not a body, not a living things, atmospheric temperature is what, increase or decrease? Yes, decrease होगा ना। आप बोलना चाह रहे थे कम होगा ना, मीन्स व्हाट, यहाँ पे एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़ जाएंगे। एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, इट मीन्स व्हाट, वहां पे जो हॉटनेस है वो वाटर ड्रॉपलेट ऑब्जर्व कर लेंगे। एनर्जी का रूल हमने कल भी देखा था, एनर्जी हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट में ट्रांसफर होती है। अगर किसी रूम में आज, अब यहाँ पे गर्मी हो रही है, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो एयर है इस एयर का टेम्परेचर एक्स्ट्रा है, टेम्परेचर एयर का ज्यादा है, इस जगह का नहीं, ये एयर में टेम्परेचर ज्यादा है। अब अगर यहाँ पे गर्मी कम करना है तो फैन चलाना पड़ेगा। फिर फैन क्या करेगा, यहाँ की जो हॉट एयर है उसको कहीं तो भी ढकेल देगा।
अब इस एयर को अगर कहीं ढकेलेगा तो यहाँ पे दूसरी एयर आएगी ही, जो यहाँ पे आएगी वो फ्रेश वाली, वो जिसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वो यहाँ पे आएगी, जिसकी ह्यूमिडिटी कम वो हल्की बाहर, और जिसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा वो यहाँ पे रुक जाएगी। वैसे ही कूलर भी करेगा। कूलर क्या करेगा, किसी कम ह्यूमिडिटी वाली एयर को पीछे से खींचेगा और उसमें ह्यूमिडिटी ऐड करके आगे फेंकेगा। मीन्स उस एयर को वो ठंडा करेगा। ठंडा इन द सेंस व्हाट, उसमें छोटे छोटे स्मॉल माइक्रो वाटर ड्रॉपलेट को ही वो छोड़ रहा है। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गया। तो यह है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी का रिलेशन। ये जब तक ड्यू पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा तब तक ह्यूमिडिटी समझ में नहीं आएगी। ओके, एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है ड्यू टू वेपर ही है, और ड्यू भी जो है वो ड्यू टू वेपर ही है। मीन्स जब तक वेपराइजेशन नहीं होगा। अब ये जो सारी चीजें हैं ये क्यों पॉसिबल है इतनी आसानी से, बिकॉज ऑफ वी नो वेरी वेल अप्रॉक्स 37% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, इज कवर्ड विथ वाटर। ये अप्रॉक्स है, एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये एरिया कम या ज़्यादा होने वाला ही है। अगर हमारे ग्लेशियर्स इसी स्पीड से अगर मेल्ट होते रहे तो ये बहुत स्पीड से ये एरिया बढ़ सकता है या फिर घट भी सकता है। व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्लेशियर यानी आप लोगों को पता है वैक्स क्या है, क्या होता है वैक्स? नहीं ना, हाँ या ना? वो कैंडल का है वो। हाँ, ओके ग्रेट। तो इसलिए मैं कैंडल का एग्जांपल दिया। मुझे पता है ना डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें आसानी से पता होती है। इट विल स्टार्ट। ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग 3 स्पेयर। अज्यूम दिस इज लाइक अ स्पेयर, इफ इट डजंट देन स्टिल अज्यूम इट। ओके, ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर वाली चीजें हैं। ऐसे गोल दिख रही है ना, नहीं भी दिख रही है तो समझ लो ये पहली हमने ले ली किसकी, यस आयरन, देन दूसरी है कॉपर एंड देन व्हाट, लीड। ओके, ऐसे 3 स्पेयर है हमारे पास, आयरन कॉपर लीड। इन तीनों को क्या किया, इन तीनों को एक बर्तन था जिस बर्तन में पानी था, पानी था, पानी था, पानी था, और उसके पिछवाड़े में आग लगी हुई थी। क्या लगी थी? आग लगी हुई थी पानी के। इस वजह से पानी का टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। अब इन तीनों को यहाँ पे डाल दिया, उठाया और यहाँ पे डाल दिया। अब होगा क्या, कुछ देर के बाद, कुछ देर ऐसे वेट करने के बाद इनको अगर बाहर निकाला जाए, फिर से इनको अगर बाहर निकाला जाए तो इनका टेम्परेचर है, मान लो इसका 100, इसका 100 और इसका भी 100। मान लो, क्या कहा है? मान लो। ओके, ये ऐसा हो नहीं सकता, सिर्फ मान लो कि इनका तीनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इस आयन को यहाँ पे छोड़ दिया। ओके, आयन को यहाँ पे छोड़ दिया, सपोज यहाँ पे कॉपर छोड़ दिया और वो जो लीड था उसको यहाँ पे छोड़ दिया। तो आप देख पाओगे इनके जो डिफरेंस है इस शीट को पेंट्रेट करने के, पेंट्रेट यानी कि उसको छेदना, पेंट्रेट मीन्स व्हाट, छेदना। जिस स्पीड से ये आयन उसको छेदते हुए यहाँ तक आ जाएगा, ये उसको चीरते हुए आ गया। ओके, तो कॉपर समझो यहाँ कहीं तो भी आ गया। ओके, और ये लीड तो उससे भी कम हो गया। तो ऐसा क्यों, जबकि इनके टेम्परेचर तो एक जैसे होने चाहिए थे, होने चाहिए थे नहीं, होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि ये पूरा वाटर था 100 डिग्री सेल्सियस का, इन तीनों को एक साथ ही नीचे डाला था, और सपोज हमने उनको रहने दिया 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद उनको तीनों को ऊपर निकाला, तब जाके देखा कि ऐसे अज्यूम कर लिया कि तीनों चीज़ें एक साथ पानी में थी तो तीनों पे टेम्परेचर का इफेक्ट एक जैसा ही होगा। उनको वापस निकाल लिया। अब आपको लगता होगा कि तीनों का वेट अलग अलग होगा, नहीं, इन तीनों का मेस अज्यूम कर लो 1 kg, इसका 1 kg, इसका भी 1 kg। अब डाउट क्लियर हो गया? वेट का दिमाग में से निकाल डालो। ओके, अब इनको मैंने जब बाहर निकाला तो इनका टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए, हाँ या ना? फिर अगर उनको एक ही चीज़ पे मैं छोड़ रहा हूँ, फ्री फॉल कर रहा हूँ, तो ये आयन उसको चीरते हुए यहाँ तक लेके आया, ये यहाँ तक और ये लीड यहाँ तक। ऐसा क्यों? वाई? ऐसा क्यों? यस,
अब एक ही टीचर पूरे क्लास को पढ़ाता है, या आप जितने भी बच्चे देख रहे हो सबको पढ़ा रहा हूँ, इनमें से अगर 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको पढ़ा नहीं सकता करके। तो यहाँ पे इसका मतलब, इस एग्जाम्पल का मैं मीनिंग कैसे रिलेट कर रहा हूँ, देखो इन 3 चीज़ों को 100 डिग्री सेल्सियस में तो हमने ड्रॉप किया, डेप्थ किया, लेकिन अब डिपेंड करेगा कि ये बॉडी उस 100 को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, ये बॉडी उस 100 को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, और ये बॉडी उस 100 को कैसे एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो है ना, ये जो मटेरियल है, इसको अगर आप देखोगे पानी में भिगा कर रखो 10 दिन, सूखा ही मिलेगा। इसको हवा में रखोगे 10 दिन तो भी वैसा ही मिलेगा। इसको अगर जलाओगे आप तो भी वैसा ही मिलेगा। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, जो कि हम नॉर्मली उसे दे नहीं सकते। ओके, तो होगा क्या, ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगा उससे थोड़ी एक्स्ट्रा ये करेगा और उससे ज़्यादा ये कर लेगा। मीन्स इनकी हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो अलग अलग है। इस वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा पेंट्रेट कर जाएगा, ये उससे कम और ये उससे भी कम। ओके, तो एक ऐसा आपको इनमें डिक्रीजिंग नेचर दिखाई देगा। कैसा डिक्रीजिंग नेचर। अगर आप ऐसे जाओगे, मान लो कि ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो आपको पेनिट्रेशन का जो ग्राफ है वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। कैसा डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। या फिर इस ओर से अगर इधर देखोगे तो ये इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। Why? Because of the ability of these materials to absorbing the heat. Here it means what? Iron having the maximum ability to absorb the heat from this boiling water. Then next is what? Copper, which is less than iron, and here lead, which is less than both of them, iron and copper. Clear? चलो इस ओके, अब हम देखेंगे क्या, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को कैसे है, समझो एक वाटर का बीकर है हमारे पास। ओके, ये वाटर वाला एग्जांपल हम हर बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में हम हर बार देखते हैं। ओके, इस बीकर को अब हम इस बार क्या करेंगे, कैंडल नहीं, इसको रख देंगे गैस पे। कहाँ पे रख देंगे, गैस पे। बहुत बोर हो गया ना, कैंडल कैंडल। ओके, चलेगा। तो ये गैस पे रख दिया बीकर को। अब इस पे रखने से पहले, इसे गैस के फ्लेम पे रखने से पहले, मान लो कि इस वाटर का टेम्परेचर था 14 डिग्री सेल्सियस। कितना था, 14 डिग्री सेल्सियस। एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जितना था उतना उस वाटर का था। अब इसको यहाँ पे रख दिया, इसको गैस पे रख दिया, इसको जला दिया। अब कुछ देर के बाद मान लो इसका टेम्परेचर हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 15। मीन्स टेम्परेचर में क्या आ गया, इजाफा आ गया, इंक्रीज हो गया टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। जब कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर डिक्रीज होगा, व्हाटएवर, लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस का जो चेंजेस आएगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा with respect to per degree, rate of change of temperature with respect to per degree। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर समझो मैं धूप में ऐसे खड़ा रहा, तो धूप में खड़ा रहने से पहले मेरे बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉर्मल बॉडी का इंसानी 37 to 38 ऐसा कुछ है, एज पर द साइंस। ओके, एज पर नॉट मी। अब मैं अगर धूप में खड़ा रहा तो ऐसे खड़ा रहा और सडन मेरा 38 से 50 हो गया, ऐसा थोड़ा ना होगा। या फिर 38 से 47 हो गया, नहीं। तो टेम्परेचर राइज कैसे होगा, 37 अगर है तो 38 होगा, फिर 39, देन 40। ओके, तो ये जो चेंजेस है इसे ही कहते हैं स्पेसिफिक हीट। क्लियर? टेम्परेचर में आने वाले चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू +1 डिग्री सेल्सियस और -1 डिग्री सेल्सियस। सपोज अब अगर मान लो कि ये पानी 15 डिग्री सेल्सियस तक हमने गर्म किया था, अब इसे यहाँ से गैस से उतार लिया और उसको रख दिया नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर हमें पता है 14 डिग्री सेल्सियस। सो आफ्टर सम टाइम due to the atmospheric pressure, the thermal energy of that water, that is what, due to the 15 degree Celsius is greater than the atmospheric pressure. Okay,
but due to the thermal expansion of that heat energy, after some time definitely the temperature of that water becomes 14 degrees Celsius, isn't it? So whenever this temperature is after that increasing, we remove this beaker from the gas burner and stay somewhere in a normal atmospheric room temperature. Okay, so after time this temperature again becomes 14 degrees Celsius, isn't it? That is called again what? Specific heat. Okay, but both time, the time required will be different. Rising in temperature due to the gas, it may so fast, but decrease in temperature due to the atmospheric pressure, it may take some extra time. Okay, if you put this beaker inside of water, then definitely it will take again less time to reduce the temperature. Okay, so this is it. It's